Hello everyone and welcome back to our channel. Today we have something special in store for you. We will be diving into the world of classic American poetry with Walt Whitman's Song of the Open Road. So, whether you are a student preparing for your class 12 exams or simply a poetry enthusiast, you are in for a treat. But before we start, make sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss our literary explosions. Let's start. Okay. So, before we start, let's see about the poet. Who is the poet? The poet Walt Whitman. He was born in the year 31st of May 1819 and lived up to 26 March 1892. He was a famous journalist and a teacher by trade. He was famous essayist and poet, had written many modern poetries. He was born on Long Island and grew up in New York. He died at the age of 72 suffering from debilitating stroke. His poem and essays are global. Now, let's see the introduction. देखते हैं क्या है poem में. Song of the Open Road, a poem that has captured the hearts and minds of readers for generations. Today we will explore the themes, literary devices, and significance of this work in the world of literature. As you embark on this journey with us, imagine yourself on the open road. You have to imagine yourself. आपको imagine करना है बच्चों कि आप एक ऐसे road पे हो where you have nothing but endless possibilities ahead. जहाँ से आपको पता तो नहीं है कि आगे आपको क्या मिलेगा. But with optimistic mind, you have endless possibilities. आप जानते हो ऐसा कि आगे आपके साथ बहुत possibilities है. This is the essence of the poem Song of the Open Road, a poem that celebrates the freedom and individualism that comes with embarking on a journey of self-discovery. यही खासियत है बच्चों इस पोएम की. इस पोएम क्या सेलिब्रेट करता है? फ्रीडम, कि आप एक ऐसे ओपन रोड पे हो जहाँ पे आप फ्रीली आप खुद को सेल्फ डिस्कवर करोगे. आप आगे बढ़ते जाओगे. जहाँ पे क्या है आपको मिलेगा आगे आपको नहीं पता है. कितने एडवेंचर्स आपको आएंगे आपको नहीं पता है. बट you will discover yourself and you will enjoy the freedom and you will enjoy the path through vivid imaginary and poetic languages. Walt Whitman invites us to join him on this journey to embrace the unknown and to reveal the beauty of the world around us. Let's see the summary of the poem. Song of the Open Road. Walt Whitman describes a journey through nature that represents the journey of life itself. अब इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने क्या बताया है कि उन्होंने एक जर्नी डिस्क्राइब करी है. कौन सी जर्नी डिस्क्राइब करी है? लाइफ की. एक इंसान जब अपनी लाइफ आगे बढ़ते हैं उस लाइफ की जर्नी को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. द स्पीकर इनवाइट्स द रीडर टू जॉइन हिम ऑन द ओपन रोड which symbolizes the path of life and all its possibilities. जो स्पीकर है, जो वॉल्ट विटमैन है, वो हम सारे रीडर्स को हमें इनवाइट करते हैं कि हम भी उन्हें उनकी जर्नी पे ज्वाइन करें, उनके ओपन रोड की जर्नी पे ज्वाइन करें, जहाँ पे उनकी जो लाइफ है वो पाथ जो है इस जर्नी का वो कैसे रहेगा और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी. The journey is not just physical but also spiritual and emotional one, as the speaker seeks to discover his true self and connect with others. Whitman's use of vividly imaginary brings the journey to life, from the rolling, long-drawn and undulating landscape to the delicious singing of birds. The journey is not without challenges as the speaker encounters obstacles like imperfections and burdens. ये जो जर्नी है उसकी, ये बिना चैलेंजेस की जर्नी नहीं है. इस जर्नी में जो ये जर्नी वो स्टार्ट कर रहा है ओपन रोड की, इसमें ही विल फेस मेनी चैलेंजेस. बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, इम्परफेक्शंस है, बर्डन्स है. हाउएवर जो पूरा इसका जर्नी का है वो ऑप्टिमिज्मिकली ही विल स्टार्ट हिज जर्नी एंड एंजॉय द पाथ. Okay, so the theme of the poem of song Open Road is the pursuit of freedom. Freedom है जो ये जर्नी पे निकला है. हमारा जो ऑथर है, जो राइटर है, वो जो इस पे निकले हैं, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड,
जो जिस रोड पे, जिस राह पे निकले हैं वो आगे देखने के लिए अपनी लाइफ को, वो क्या बताते हैं, उसका क्या थीम डिस्क्राइब करते हैं? फ्रीडम डिस्क्राइब करते हैं. द स्पीकर सेलिब्रेट्स द फ्रीडम दैट कम्स विथ ट्रैवलिंग ऑन एन ओपन रोड, फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का कोई टेंशन नहीं है, सोसाइटी हमें क्या सोचती है, हमारे बारे में क्या चल रहा है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने जर्नी को आगे बढ़ते जाना है, हमारे फ्रीडम को देखना है. This theme is evident in lines such as afoot and light-hearted. I take to the open road, healthy, free, the world before me. The speaker suggests that truth, freedom comes from being unencumbered by the possessions and societal expectations. इन्होंने जो राइटर है हमारे, वो हमें बताते हैं कि वो एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोसाइटी के कंस्ट्रेंट से अपनी लाइफ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं. Another important theme of the poem is individualism. The speaker emphasized the importance of following one's own path and not conforming to the expectations of others. जो दूसरी theme है, the another theme of the poem is individualism. Individualism मतलब हर इंसान को अपना देखना चाहिए, ना कि हमें देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है. If you are on the journey of your life, it is you who will see what is going to happen and how you are tackling the situations. आप आपकी लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे टैकल कर रहे हो आपकी सिचुएशंस को. सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का कंस्ट्रेंट्स, कोई उसमें किसी का भी रोल नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअल हमारा ही सिर्फ उसमें रोल होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हमें हमारी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है. This theme is apparent in lines such as I inhale great draughts of space, the east and the west are mine, and the north and the south are mine. The speaker asserts his right to claim the entire world as his own and encourage others to do the same. Finally, the poem explores the theme of the journey of self-discovery. और जो इसका लास्ट थीम है हमारे पोएम का, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का, इसका जो लास्ट थीम है दैट इज सेल्फ डिस्कवरी. हर इंसान जब उस जर्नी पे निकलता है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी निकालता है कि हम जिस जर्नी पे है, हमारे अंदर क्या चीजें, हम नई नई चीजें क्या डिस्कवर करते हैं अपने लिए, नॉट फॉर सोसाइटी. The speaker suggests that the open road is not just a physical journey but also a journey of the soul. This theme is evident in lines such as Alon's, whoever you come, traveling with me, you find what never tires. The speaker invites others to join him on this journey of self-discovery, suggesting that it is a never-ending process that can bring endless rewards. स्पीकर हमें क्या बताते हैं, ये जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी है, ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी के लिए है, और ये बोलते हैं कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. हमें इस ओपन रोड पे चलते ही जाना है और खुद को एक्सप्लोर करना है और खुद को डिस्कवर करना है. ओके, सो अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. ये जो पोएम है, इन्होंने अफूट मीन्स पैदल ही निकल पड़े हैं इस जर्नी पे. लाइट हार्टेड मतलब दिल में कुछ रखा नहीं है, एकदम फ्री होके अपनी जर्नी स्टार्ट करी है. आई टेक टू द ओपन रोड, ये एक ओपन रोड जो है, लॉन्ग ओपन रोड इन्होंने स्टार्ट करा है. हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, जो भी मेरे आजू बाजू की दुनिया है, जो भी मेरे आजू बाजू के लोग हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनका कुछ सोचना नहीं है, मुझे सिर्फ आगे अपनी लाइफ में बढ़ते जाना है. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ मीन्स ये जो रोड है, ब्राउन रोड जो है, ये जो रास्ता आगे जा रहा है, जो बिफोर मी मीन्स जो मेरे आगे ये जो रास्ता है, जो मैंने खुद चूज किया हुआ है, मुझे उस पे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. वो क्या बोलते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे साथ अच्छा हो. गुड फॉर्चून, अच्छा, गुड लक नहीं मानता हूं, मैं नहीं चाहता हूं गुड लक,
मैं खुद एक गुड लक बनना चाहता हूँ, मैं खुद अपनी जर्नी डिसाइड करना चाहता हूँ, और मैं खुद अपना सब कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं प्रे नहीं करूंगा कि सब कुछ गुड लक मेरे को मिले। आई विल क्रिएट माई सेल्फ, आई एम माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, laborious, querulous, criticisms, strong and content, I travel the open road. Henceforth means इसीलिए अब उसने रोना, whimper means रोना बंद कर दिया है। जैसे कुछ लोग किसी छोटी छोटी चीजों पे रोते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे ये लाइफ में चाहिए। सो व्हाट ही इज सेइंग, मैंने छोटी छोटी चीजों पे रोना बंद कर दिया है। पोस्टपोन करना, कल के ऊपर चीजें उतारना, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, वो मैंने बंद कर दिया है। मुझे अब सिर्फ कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कुछ इंडोर कंप्लेंट्स नहीं, इंडोर मीन्स हमारी खुद की जो मन की कंप्लेंट्स है वो मैंने बंद कर दिया है। सारी कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म, सब कुछ कंप्लेन करना बंद कर दिया है। मैं सिर्फ स्ट्रांग बन के और कंटेंट होके ये लाइफ जर्नी पे ट्रैवल करना चाहता हूँ। Strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. Strong होके, content होके, happy, satisfied होके ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये बोलते जो अर्थ है ये सफिशिएंट है मेरे लिए, जो रास्ता चल रहा है ये काफी है। मुझे कोई चांद तारे कॉन्स्टलेशंस नहीं चाहिए मेरे इसमें, मुझे कोई तारों, कॉन्स्टलेशंस हियर मींस कोई गुड लक्स। हम जैसे बोलते हैं ना कि हम ज्योतिषियों से पूछवाते हैं, गुड लक्स देखते हैं, तो व्हाट ही सेइंग, मुझे कोई चांद तारों के, जो तारों की बातें होती है, जो कॉन्स्टलेशंस की बातें होती है, ये मुझे कुछ मेरे सामने नहीं चाहिए। जो है जहां पे है वही हो जाए, वही रहे। मैं सिर्फ अपनी कंटेंट और स्ट्रांग होके मैं खुद इस अर्थ पे चलने वाला हूँ जो मेरे लिए सफिशिएंट है। आई नो द सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। मुझे पता है ये जो भी चीजें होती है, ये जो चांद तारों की बातें होती है, जो भी चीजें होती है वो उनके लिए है जो उनको बिलोंग करते हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। ना, उन्होंने बर्डन्स को डिलीशियस बोला है। बर्डन्स मीन्स उसके जितने भी चीजें हैं उन्होंने उनको क्या बोला है, डिलीशियस बोला है। क्यों डिलीशियस बोला है? कि उन्होंने उनका जितना भी पास्ट है, सब कुछ है, वो उसको सेलिब्रेट होके अच्छे से उसको कैरी करेंगे आगे। आई कैरी देम, मैन वुमेन जो भी मेरी लाइफ में है, अच्छा बुरा सब मैं इस पे चलता जाऊंगा कैरी करके। I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. इस रास्ते में जो भी चलते आएंगे वो सब उनको कैरी करते हुए जाएंगे। ऐसा उन जो भी बुरी चीजें हैं, कुछ भी है, उसको रिड करना मतलब निकाल के फेंक देना इज इम्पॉसिबल। उनसे भरे हुए हैं और उनको आगे भी भरेंगे। ओके, so in conclusion, Song of the Open Road is a powerful poem that explores themes of freedom, individualism and self-discover. The poem's significance in literature lies in its ability to inspire readers to embrace their own journeys and find meaning in their life. Now, ये जो पोएम है, ये पोएम मेन सिग्निफाइज क्या करती है इस लिटरेचर पोएम में? ये बताती है कि हमारी जो जर्नी है हमें खुद डिसाइड करनी है। हमारे जो पीछे के पास्ट है, जो कोई भी हमारी बुरी चीजें हैं, वो हमें छोड़ के हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें फ्री होके हमारी लाइफ को आगे चलते रहना है। As we reflect on this poem, I leave you with a thought-provoking question. What does it mean to truly be free? Let us continue to explore these questions and discover our own path in life. Now, as we wrap up our exploration of Song of the Open Road, I encourage you to take some time to read and reflect on this beautiful poem. It's more than just words on page. It's an invitation to experience life to the fullest. ये मैं अब No, you read this poem. It's not just about the class 12 poem. ये आपको सिर्फ एग्जाम्स में पास कराना है उसके लिए नहीं है, but this has a deep meaning.
in real life, in reality also. So as an individual also, one should, reflect this in your own life too, to experience your life to the fullest. Okay, thank you for joining us on this poetic journey today. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and share it with your fellow students. And of course, if you have any questions or would like us to explore more classic literature, leave a comment below. Until next time, happy reading and may the open road lead you to the new horizons. Goodbye.